السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پاناما ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اپیلیں خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزائیں بحال کر دیں۔ نواز شریف پہلے ہی عدالتی مفرور قرار دیے جا چکے ہیں۔ نواز شریف واپس آئیں یا پکڑے جائیں تو اپیل کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی نواز شریف کو پیشکش، کہا نواز شریف واپس آ جائیں، گارنٹی دیتے ہیں مکمل انصاف ہوگا۔ بولے سابق وزیر اعظم بیماری کا بہانہ اور چکمہ دے کر ملک سے بھاگ گئے، حکومت کی پوری کوشش ہے نواز شریف کو واپس لایا جائے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت آل پارٹیز کانفرنس، بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس اور کشمیری رہنماؤں نے مقبوضہ وادی کا اسٹیٹس بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مودی سرکار کی بوکھلاہٹ، مقبوضہ کشمیر پر اے پی سی سے قبل وادی میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ سری نگر چھاؤنی میں تبدیل، کئی شہروں میں انٹرنیٹ سروسز 48 گھنٹے کے لیے معطل۔ لاہور جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، حساس اداروں نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ گجرانوالہ کا رہائشی کراچی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشتبہ شخص کو فلائٹ سے آف لوڈ کر کے حراست میں لیا گیا۔ جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوک نمبرز کو شارٹ لسٹ، گاڑی پارک کرنے والے افراد کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش جاری، دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کی تصاویر بھی جاری، تفتیشی ٹیم کڑیاں ملانے میں مصروف۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں لاہور جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات میں اہم کامیابی ملی۔ ویڈیو بیان میں دعویٰ کیا کہ پنجاب پولیس ملزمان کی گرفتاری کے قریب ہے، جلد عوام اچھی خبر سنیں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں زکوٹا جن کا تذکرہ، لیگی رکن مریم اورنگزیب بولیں ملک میں بحرانوں کا ذمہ دار زکوٹا جن ہے، جس کا کام صرف یہ ہے کہ مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، یہ زکوٹا جن کا بجٹ ہے۔ زکوٹا پارلیمان پر حملہ کرتا ہے، پی پی کی ہنا ربانی گھر کہتی ہیں پی ٹی آئی نے حکومت میں آتے ہی لنگر خانے کھول دیے، پارلیمان میں اصل ایشوز پر بات ہی نہیں کی جاتی۔ لاہور کی سیشن عدالت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ کے ضمانتی مچلکے منظور کر لیے۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 3 روز میں 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا تھا۔ آمدن سے زائد اثاثے کیس میں ضمانت، نیب کورٹ نے خواجہ آصف کو رہا کر دیا۔ لیگی رہنما 5 ماہ سے نیب کی قید میں اور 3 ماہ سے زیر علاج تھے۔ حیدر علی اور امید آصف بایو سیکیور ببل کی خلاف ورزی پر معطل، حیدر علی دورہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز سے بھی باہر، صہیب مقصود کو بطور متبادل کھلاڑی شامل کر لیا گیا۔ دونوں کھلاڑی پی ایس ایل کے فائنل سے بھی آؤٹ ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں شراکت داروں کے تعاون سے جلد ملک سے پولیو کا خاتمہ کر دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے چیئرمین بل گیٹس نے فون پر رابطہ کیا، پاکستان میں انسداد پولیو مہم اور کورونا سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ حکومت اور فلور ملز مالکان کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ بجٹ میں چوکر اور گندم پر ٹن آر اور جی ایس ٹی نافذ کیے جانے کے خلاف ہڑتال۔ کراچی سمیت ملک بھر میں فلور ملز مالکان نے ملز بند کر دی۔ پہلے مرحلے میں احتجاجاً 2 روز کے لیے 80 فلور ملز بند کی ہیں۔ آل مالکان فلور ملز ایسوسی ایشن کا اعلان۔ ملک میں ایک بار پھر پیٹرول بحران کی دستک، آل پاکستان آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کی ملک گیر ہڑتال جاری۔ کانٹریکٹرز نے کراچی سمیت ملک بھر میں تیل کی ترسیل روک دی۔ کراچی سمیت ملک بھر میں گیس اور بجلی کا بحران، سندھ میں نان ایکسپورٹ انڈسٹری کو 100% گیس کی ترسیل بند، سی این جی کی بھی بندش، عوام بلبلا اٹھے۔ گیس بحران پر وفاق اور سندھ آمنے سامنے، صوبائی وزیر توانائی نے گیس بندش کو صوبے پر حملہ قرار دے دیا۔ امتیاز شیخ کہتے ہیں گیس کی بندش کر کے پیغام دیا جا رہا ہے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، سندھ کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی، حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے، ناصر شاہ کہتے ہیں اسپیکر صاحب نے شور شرابے کی وجہ سے اجلاس ملتوی کیا، کل صوبائی بجٹ پاس ہو جائے گا، پی ٹی آئی کا کل سے احتجاج کا اعلان۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان اور چین کی دوستی دنیا کے لیے مثال ہے، دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی پائیدار شراکت داری میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی 70 سالہ پاک چین سفارتی تعلقات کی تقریب کے موقع پر گفتگو۔ وزیر اعظم سے خیبر پختونخوا سے منتخب ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات، متعلقہ حلقوں کے مسائل اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا میں ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی کے منصوبوں پر بھی بات چیت کی گئی۔
حج کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب ناموں کا اعلان کل ہوگا۔ سعودی پورٹل پر 5,58,000 افراد نے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے درخواستیں جمع کرائیں۔ جمعے کے بعد حج پیکیجز کی بکنگ شروع ہو جائے گی۔ 20 ممالک کے سفیروں اور عالمی اداروں کے نمائندوں کا NCOC کا دورہ۔ کورونا سے متعلق NCOC کے مختلف اقدامات پر بریفنگ۔ سفیروں نے پاکستان میں وبا کنٹرول سے متعلق کاوشوں کو سراہا۔ قومی ٹیم کا دورہ انگلینڈ کے لیے براستہ ابوظہبی برمنگھم پہنچے گی۔ PSL میں شریک اسکواڈ ابوظہبی سے انہیں جوائن کریں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کا پہلا ون ڈے 8 جولائی کو ہوگا۔ مصر کے سفیر طارق محمد دھارو کی سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ دوران ملاقات پیشہ ورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ نے دونوں ممالک کی فضائی افواج کے درمیان پہلے سے استوار پائیدار تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ چائنا کی انٹرنیشنل کمپنی ڈانگ فانگ کی CEO کی BTV نیوز سے خصوصی گفتگو۔ آرگینک پروڈکٹس کے حوالے سے بھی بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے آم، مرچیں اور سویابین کو اپنی پروڈکٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ پچھلے 20 سالوں سے پاکستان کے مختلف کاروباری شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ خطرناک مجرم کو پکڑنے کا مشن، خاتون پولیس افسر نے زندگی داؤ پر لگا دی۔ آؤٹ آف ڈیٹ کا سنسنی خیز ٹریلر جاری۔ فلم 29 جولائی کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک روزہ دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے ترکی کے دورے کے دوران ترک وزیر دفاع سے ملاقات کی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ ملاقات میں ترک کمانڈر جنرل اسٹاف اور ترک بری فوج کے سربراہ بھی موجود تھے، جبکہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ملاقات میں افغان امن عمل سے متعلق صورتحال پر بات چیت کی گئی، جبکہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ دفاعی اور سیکورٹی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے خطے میں امن کے لیے ترکی کے پاکستان کے ساتھ روابط کو سراہا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ترکی خطے کے اہم مسلم ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان اور ترکی کے بڑھتے ہوئے تعلقات کا خطے کے امن و استحکام پر مثبت اثر ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ شرکاء کو ملکی دفاع کو درپیش چیلنجز، مسئلہ کشمیر اور افغان صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں ISI ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹر میں نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی شرکت کی۔ سروس انٹیلیجنس ایجنسیز IB اور فیڈرل انویسٹیگیشن کے سربراہان بھی اجلاس میں موجود تھے۔ کمیٹی کے شرکاء کو ملکی دفاع کو درپیش چیلنجز، مسئلہ کشمیر اور افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں ملکی خفیہ ایجنسیز میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی خفیہ ایجنسیوں میں کوآرڈینیشن کو مزید بہتر بنانے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی ضمانت منظور ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس شہباز رضوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے خواجہ آصف کی ضمانت کا فیصلہ سنا دیا۔ خواجہ آصف کو 29 دسمبر 2020 کو گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ خواجہ آصف نے درخواست ضمانت 27 مارچ 2021 کو دائر کی تھی۔ جوہر ٹاؤن میں ہونے والی دہشت گردی کا معاملہ، دہشت گردی کا مقدمہ تھانہ CTD لاہور میں درج کر لیا گیا۔ بم دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ جوہر ٹاؤن میں ہونے والی دہشت گردی کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج کر لیا گیا۔ مقدمہ SHO تھانہ CTD انسپیکٹر عابد بیگ کی مدیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں 7 ایکسکلوزیو ایکٹ 148/149، 302، 324 اور دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقدمے میں 3 نامعلوم دہشت گردوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ متن میں کہا گیا کہ دہشت گردوں نے کارروائی کے لیے گاڑی اور موٹر سائیکل کا استعمال کیا۔ دھماکے سے 3 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہوئے۔ دوسری جانب بم دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کی تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں۔ گاڑی ظفر اللہ نامی شہری کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ کالے رنگ کی گاڑی کا نمبر LEB 9928 ہے۔ گاڑی کا ماڈل 2010 بتایا جا رہا ہے۔ ٹوکن ٹیکس بھی 2021 تک ادا کیا ہوا ہے۔ گاڑی جوہر ٹاؤن آنے سے پہلے کنال روڈ اور اس سے متعلقہ علاقوں میں دیکھی گئی۔ گاڑی ممکنہ طور پر چوری کے بعد یہاں کھڑی کی گئی۔ وزارت خزانہ کی FATF سے متعلق خبروں پر وضاحت آ گئی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے فرانس پاکستان کا متحرک شراکت دار ہے۔
फ्रांस ने एक्शन प्लान के लिए पाकिस्तान को रहनुमाई तकनीकी ताउन फराहम किया। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए सियासी सतह की यकीन दहानी कराई। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 साल में एक्शन प्लान पर मौसर तेज तर अमल दरामद किया। पाकिस्तान की कारकर्दगी को बैनुल अक़वामी बिरादरी ने भी सराहा है। पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरउम्मीद। एलामिया में कहा गया है कि मीडिया FATF से मुताल्लिक क़यास आराइयों नामुकम्मल खबरों से इज्तनाब करे। क़यास आराई पर मबनी खबरों से आलमी ताउन को नुकसान पहुँच सकता है। वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान से मुतालिक FATF का फैसला 25 जून के प्लेनरी इजलास के बाद होगा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने FATF के 26 पॉइंट्स पर पेशरफ्त मुकम्मल कर ली है। FATF एक्शन प्लान के 27 पॉइंट्स पर अमल दरामद के लिए कहा गया था। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता मीटिंग तक पाकिस्तान ने 24 नुकात पर अमल दरामद किया था। जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया। इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम उठाने के लिए पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक वक्त दिया गया था, जिसमें बाद में मजीद तौसीक कर दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जिना अस्पताल आमद। जौहर टाउन धमाके के जख्मियों की अयादत की। जख्मियों को इलाज मुआवजे की हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जिना अस्पताल आमद। जौहर टाउन धमाके के जख्मियों की अयादत की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत करते हुए कहा कि जख्मियों की देखभाल में कोई कसर न रही जाए। वज़ीर आला पंजाब का जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इमलाक को पहुँचने वाले नुकसान का भी अजाला किया जाएगा। जख्मी अफराद का फ्री इलाज मुआवजा होगा। हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, हुकूमत आपके साथ खड़ी है। वज़ीर आला ने जख्मियों के हौसले और अज़म को सराहा। उनका कहना था कि डॉक्टर्स ने जख्मियों की देखभाल के लिए अपना दिन रात एक किया हुआ है। मैं डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को शाबाशी देता हूँ। वज़ीर तालीम बलोचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिद ने वज़ीर आला जाम कमाल से इख्तलाफात की बिना पर अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि अगर इन्हें और इनके खानदान को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल होंगे। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वो जल्द अपना इस्तीफा गवर्नर बलूचिस्तान को भिजवा देंगे। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला की जानिब से उनकी वजारात में मुसलसल मुदाखलत हो रही थी। आइंदा माली साल के बजट में तालीम के हवाले से उनके अहम मंसूबे मुस्तरद कर दिए गए। वज़ीर आला ने बजट में जिला लजबीला के लिए 12 अरब और मेरे जिला के लिए 2 अरब भी नहीं रखे। उनका कहना था कि अगर इन्हें और उनके खानदान को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल होंगे। असम्बली इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरदार यार मोहम्मद रिंद का कहना था कि अपोजिशन में बैठने का फैसला PTI की पार्लिमानी पार्टी करेगी। अपनी पार्टी की मरकजी क़यादत से मायूस हूँ जिसने हमें नज़रअंदाज किया। 4-5 नशस्तों के लिए हमें जाम कमाल के हवाले कर दिया। सूबाई वज़ीर सरदार यार मोहम्मद ने कहा कि जाम हुकूमत को जाना चाहिए क्योंकि ये सूबे पर बोझ है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 38 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 1097 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद में कमी आई है और फाल केसेस की तादाद 32,936 हो गई है, जबकि 2000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,519 टेस्ट किए गए, जिनमें से 930 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 39 अफराद हलाक हुए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.04% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 22,073 हो गई। कुल केसेस की तादाद 9,50,768 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,95,690 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। चाइना से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी खातून मिस डोमी डोंगफोंग इंटरनेशनल कंपनी की CEO ने BTV न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू दिया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के हवाले से भी बात की। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान के आम, मिर्चें और सोयाबीन को अपनी प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और कंस्ट्रक्शन के शोबे से भी वाबस्ता हैं। उनका कहना था कि उनकी कंपनी कंस्ट्रक्शन की 20 मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों पर काम करती है, जैसे कि कंक्रीट, ऐश, मिनरल पाउडर, वाटर रिड्यूसिंग केमिकल एजेंट। वो पिछले 20 सालों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ कारोबारी शोबों में काम कर रही हैं। My company name is Dongfang International. First, we are working in a water treatment plant. Yeah, for drinking water. We have over 20 type of items for different type of construction material, like for concrete, some mineral powder, fly ash, bottom ash, chemicals,
like a water reducing agent, accelerator. We had supplied a lot of projects in Pakistan. From last year, we set up some unit for food items, organic food. Like we use local product, agriculture items, mango, chili, even some soya beans, Pak China friendship for long live. शामिल करेंगे बैन अल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सेनेट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। सेनेट में मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली फौरी वापस लेने और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के हक़ में मुतफ़िका करारदाद मंजूर हुई है, जिसमें भारत से कश्मीर पर नाजायज़ तसल्लुत के खात्मे का मुतालबा किया गया है। मुतफ़िका करारदाद में मुतालबा किया गया है कि भारत कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदाद की रोशनी में हक़ खुद इरादियत दे और कश्मीर की आईनी हैसियत को 5 अगस्त 2019 से पहले की हालत पर बहाल करे। करारदाद के मुताबिक भारत ज़ेरे हिरासत तमाम सियासी कैदी फौरी रिहा करे, हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में अक़लियत को अक्सरियत में बदलने की कोशिशें फौरी तर्क करे, जुल्म जबर के खिलाफ कश्मीरियों की बाहिम्मत जद्दोजहद और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। ख्याल रहे कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों के अज़्म इस्तक़लाल के सामने घुटने टेकते हुए कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली समेत दीगर मसाइल के हल के लिए ऑल कश्मीरी पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर रखा है। रूस का कहना है कि उसके तैयारों और जंगी कश्तियों ने एक बरतानवी जंगी बहरी जहाज को रूसी पानियों से दूर रखने के लिए हमला किया है। रूस के तैयारों और बहरी जहाजों ने बरतानिया की जंगी बहरी जहाज पर हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि 20 से जायद रूसी तैयारों और 2 कोस्ट गार्ड्स कश्तियों ने क्रीमिया के मकाम पर बरतानवी जंगी बहरी जहाज को निशाना बनाया है। रूसी वज़ीर दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बरतानवी जहाज रूस की समंदरी हुदूद में दाखिल हुआ था, जिसे वार्निंग देने के लिए इसके करीब तैयारों से बम गिराए गए थे। दूसरी जानिब बरतानिया के वजारत खजाना की जानिब से जारी बयान में रूसी हमले का इनकार किया गया। बयान में कहा गया कि उनका बहरी जहाज यूक्रेन के समंदर में था और उस पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि 3 मील दूर रूसी जहाज मशकें कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का कहना है कि इसके जंगी बहरी जहाजों ने बहरे अस्वद में बुध को बरतानवी जंगी जहाज को क्रीमिया के करीब अपने पानियों से दूर हटाने के लिए तनबीही फायर किए और तैयारों से बम गिराए गए। वाज़ेह रहे कि सर्द जंग के बाद पहली मर्तबा है कि मास्को ने नेटो के जंगी जहाज को रोकने के लिए बराह रास्त गोलाबारी के इस्तेमाल का एतराफ किया है, जो कि रूस और मगरिब के माबैन बढ़ते हुए तनाव के दरमियान फौजी वाक़यात के बढ़ते हुए खतरात की अक्कासी करते हैं। तुर्की ने अफगानिस्तान में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मजीद फौज न भेजने का ऐलान कर दिया। तुर्क वज़ीर दिफा हुलूसी अकार ने 2 टोक ऐलान किया है कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मजीद फौज नहीं भेजेंगे। तुर्क वजीर दिफा हुलूसी अकार ने 2 टोक ऐलान किया है कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मजीद फौज नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा कि मिशन के लिए लॉजिस्टिक और माली मदद पर अमेरिका से बातचीत जारी है और जुमेरात को अमेरिकी वफ्द के साथ मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्क वजीर दिफा ने वाज़ेह किया कि तुर्की 6 साल तक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मिशन के तहत मौजूदगी रखेगा और नेटो मिशन के तहत हमारे 500 फौजी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तुर्की और नेटो के दरमियान रूस में दिफाई साजो सामान खरीदने पर ताल्लुकात तनाव का शिकार है। नेटो के इनकला के बाद तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की पेशकश की थी। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी मुशीर कौमी सलामती उमूर ने बताया था, नेटो समिट के मौके पर होने वाली मुलाकात में इत्तेफाक किया गया था कि हामिद करज़ई एयरपोर्ट से नेटो और अमेरिकी फोर्सेस के बाहिफाजत इनकला और बाद में सिक्योरिटी में तुर्की कलीदी किरदार अदा करेगा। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। गैस फील्ड्स की सालाना मरम्मत के बायस मुल्क में बिजली का बहरान होने का शदीद खदशा। ज़राए ने बताया कि LNG की तरसील भी 1 से 1.5 हफ्ते बंद रहेगी। इस सूरत हाल में बिजली की लोड शेडिंग से कैसे बचा जाए, वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक गैस फील्ड की मरम्मत और LNG तरसील बंद होने से पावर प्लांट्स को गैस फराहमी मुतासिर होगी। ज़राए ने बताया कि LNG की तरसील भी 1 से 1.5 हफ्ता बंद रहेगी। इस सूरत हाल में बिजली की लोड शेडिंग से कैसे बचा जाए, वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। इजलास में इरसा, वापडा, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम और प्लानिंग के हुक्काम शरीक होंगे। हुकूमत ने पन बिजली पैदावार बढ़ाने के लिए इरसा को डैमों से पानी का अखराज बढ़ाने का कहा था। ताहम इरसा का कहना है कि पन बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी के ज़खायर खत्म करने का रिस्क नहीं ले सकते।
ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने इनकम टैक्स की शरह घटाकर 2% करने और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर आबिद अब्दुल्ला आफरीदी और जनरल सेक्रेटरी शुएब अशरफ ने कहा कि 48 घंटों में मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में जुमरात से मुल्क भर में तेल की तरसील बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वजीर पेट्रोलियम से 18 जुलाई 2020 को होने वाले इजलास में विफाकी वजीर ने ग्रॉस रेवेन्यू पर टैक्स की शरह में कमी समेत दीगर तमाम मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन विफाकी बजट में कोई इकदाम तजवीज़ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ओगरा की जानिब से कमर्शियल और गैर कानूनी लोड शेडिंग पर पाबंदी के बावजूद रोका नहीं जा रहा। व्हाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे के जरिए अब पेट्रोल की तरसील भी पाइपलाइन पर मुंतकिल की जा रही है, जिसमें ऑयल टैंकर्स के जरिए तरसील का कोटा ताहाल मुख्तस नहीं किया गया। हालांकि ऑयल टैंकर्स मालकान और ओगरा के मेयार के मुताबिक फी टैंकर 2 करोड़ रुपए मालियत से तैयार करके अरबों रुपए की सरमायाकारी कर चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने और कारोबारी तबके को रिलीफ देने के लिए गंदम चौकर पर तजवीज़ करदा 17% सेल्स टैक्स वापस लेने का ऐलान कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि गंदम और चौकर पर तजवीज़ करदा सेल्स टैक्स के बारे में दोबारा वजाहत जारी कर दी गई है। फाइनेंस बिल 2021 में FMCG मसनूआत बाशमूल फ्लोर मिल्स रिटेलर्स को सहूलत देने के लिए टर्न ओवर बुनियादों पर मुजवजा कम अज कम टैक्स शरह टेबल को तब्दील कर दिया है। इस सिलसिले में FBR ने पहले भी वजाहत जारी की थी, जिसमें फाइनेंस बिल 2021-22 में मुतालका टेबल में गलती से फ्लोर मिल्स अल्फाज ना लिखे जाने की वजाहत की थी। फाइनेंस बिल में इस गलती की तरमीम के जरिए तसहीह कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि फ्लोर मिल्स पर लागू कम अज कम टैक्स टर्न ओवर के 0.25% रहेगा, ना कि टर्न ओवर के 1.25%, जिसका तासुर देने की कोशिश की जा रही है। FBR ने मजीद कहा है कि पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए पेश होने वाले तरमीमी फाइनेंस बिल में गंदम और चौकर पर आयद टैक्स वापस लिया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से गंदम और चौकर पर सेल्स टैक्स की तजवीज़ वापस लेने से 1 जुलाई को आटे की कीमतों में मुतवक्के इजाफा अब रुक जाएगा। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफरटेनमेंट में। कम वक्त और कम रकम में सफर मुमकिन, जर्मन कंपनी ने एयर टैक्सी मुतारिफ करवा दी। कंपनी ने साथ ही लोगों को नए ख्वाब भी दिखा दिए। जर्मनी कंपनी का कहना है जैसे जैसे टैक्सी की तादाद बढ़ेगी, मुमकिन है कि एयर टैक्सी का किराया भी आम टैक्सियों जितना हो जाए। दुनिया के सबसे बड़े मालबरदार तैयारे एंटोनॉव AN 225 मरिया की परवाज आज दोपहर 11:27 पर कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। दुनिया का ये सबसे बड़ा कार्गो तैयारा आज अली युसूफ काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर मौजूद था। माजी में ये रूसी साख्ता तैयारा अफगानिस्तान में अमरीकी और नेट अफवाज को सामान पहुंचाने का काम करता रहा है। अगस्त 2020 से इसकी परवाजें मुअत्तल थीं, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज से इसकी परवाजों का आगाज किया गया है। NA 225 पहली बार 20 अप्रैल 2018 के रोज पहली बार जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था। NA 225 के बाजुओं का फैलाव 88.4 मीटर, ऊंचाई 18.2 मीटर और टेक ऑफ के वक्त वजन 14,11,000 पाउंड तक होता है। इसके भारी भरकम वजूद को फिजा में बुलंद करने के लिए इसमें 6 अदद योकामा टर्बोजेट इंजन नस्ब हैं। दुनिया का ये सबसे बड़ा माल बरदार तैयारा 1980 के अशरे में सोवियत यूनियन में अस्करी मकासद के तहत बनाया गया था। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। मलेरिया का मर्ज मच्छरों की वजह से फैलता है। इससे हर साल 200 मिलियन से ज़ायद अफराद मुतासिर होते हैं। इस मर्ज पर काबू पाने के लिए मलेरिया की हौसला अफजा नताइज की हामिल वैक्सीन की तैयारी में अमरीकी महक़क़ीन ने अहम किरदार अदा किया है। मलेरिया से हर साल 4 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो जाते हैं और इनमें से अक्सरियत 5 साल से कम उम्र के बच्चों की होती है। अमरीकी और दीगर महक़क़ीन की जानिब से तैयार की जाने वाली हौसला अफजा नताइज के हामिल एक मौसर वैक्सीन की वजह से मुमकिन है कि ये सूरत हाल जल्द ही तब्दील हो जाए। मलेरिया मच्छरों की वजह से फैलता है और इससे हर साल 200 मिलियन से ज़ायद अफराद मुतासिर होते हैं। तिब्बी जरीदे द लॉन्सेट में 15 मई को शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक आर नामी ये नई वैक्सीन 5, 21 से 17 माह की उम्र के बच्चों को मलेरिया से बचाने में 77% मौसर साबित हुई। इस तहकीक के शरीक मुसन्निफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एड्रियन हिल कहते हैं ये अहम नताइज इस वैक्सीन से वाबस्ता हमारी ऊंची तवक्कात की तायीद करती है। उन्होंने बताया कि नताइज 2030 तक मलेरिया के खिलाफ आलमी इदारा सेहत
सेहत की तंजीम की 75% मौसर वैक्सीन की तैयारी के हदफ PDFMB को पूरा करने की 2 सिमत में एक अहम कदम है। इससे पहले टेस्ट की गई मौसर तरीन वैक्सीन महज 56% मौसर है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकार अहद रजा मीर की वालदा समरा रजा मीर का कहना है कि उनका बेटा अहद स्किन प्रोडक्ट्स उनसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया पर अहद रजा मीर का वालदा समरा रजा मीर के हमरा एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। अहद रजा मीर की वालदा ने दौरान शो अहद के लिए तंजिया लहजा इख्तियार करते हुए मद्दाहों को बताया कि अहद बेहद सफाई पसंद है। इतने सफाई पसंद है कि जब आप उनके कमरे में जाएं ऐसा महसूस होता है जैसे कोई धमाका हुआ हो। समरा रजा ने मजीद बताया कि अहद मुझसे ज्यादा स्किन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और मुझे शर्म आती है जब मैं स्किन प्रोडक्ट्स अहद से लेकर इस्तेमाल करूं। उन्होंने कहा कि अहद से पैसे उधार लेने के अलावा स्किन प्रोडक्ट्स भी उधार लेकर इस्तेमाल करती हूं। अदाकारा हीरा मानी ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने औरत मार्च की हामी खवातीन पर तंज करते हुए पाकिस्तानी खवातीन के लिए पैगाम दिया है। हीरा मानी इन दिनों फैमिली के हमरा अमेरिका में छुट्टियां मनाने गई हुई हैं और वहां से छुट्टियां मनाते हुए खूबसूरत तस्वीर और वीडियोस शेयर कर रही हैं। हाल ही में अदाकारा हिरा ने गाड़ी में पेट्रोल भरते हुए एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है जिसमें वो कह रही हैं बाहर की ममालिक में खवातीन सारे काम खुद करती हैं और इस बात के लिए मैं उनकी तारीफ करना चाहती हूँ। इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाली खवातीन को बावर करवाया कि हम बड़े खुशकिस्मत मुल्क में रहते हैं जहाँ आपकी एक आवाज़ पर मुलाजिमीन आपका काम करती हैं। यहाँ तक कि जब आप गाड़ी में पेट्रोल या गैस भरवाने गैस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी गाड़ी में गैस या पेट्रोल भरते हैं। इस वीडियो के साथ हीरा मानी ने औरत मार्च का मखसूस और सबसे मकबूल नारा लगाया, अपना खाना खुद गर्म करो। वाज़ेह रहे कि हीरा मानी अमेरिका से अपनी और अपने बच्चों की छुट्टियां मनाते हुए तस्वीर शेयर कर रही हैं जिन्हें मद्दाहों की जानिब से काफी पसंद किया जा रहा है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का फाइनल आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान अबुधाबी में खेला जा रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे को जेर करने के लिए तैयार हैं, जबकि कप्तान भी ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि फाइनल में कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखेंगे और फाइनल में सब मिलकर मेहनत करेंगे। इधर पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज भी दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरउम्मीद हैं। मुल्तान सुल्तान पहली बार PSL का फाइनल खेलेगी जबकि पेशावर ज़ल्मी चौथी मरतबा फाइनल खेलने जा रही है। दोनों टीमें PSL तारीख में 8 मरतबा बंदे मुकाबिल आ चुकी हैं। इन मुकाबलों में मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को 5 मरतबा मात दी है जबकि 3 मरतबा शिकस्त का सामना करना पड़ा है। PSL 6 में दोनों टीमें 2 बार मद्दे मुकाबिल आई, एक में सुल्तान जीते तो दूसरी में ज़ल्मी ने बाजी मारी। फैसला कुन मार्का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का निजी स्पोर्ट्स चैनल फाइनल को बराह रास्त नशर करेगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम रात और शाम में खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जुमे के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। तहम गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।